Okay, let us start our today's class. Today we will discuss about contiguous memory allocation mechanism. In last class, we have seen about the some swapping options and how we can allocate a process to a memory. So we have seen some example how we can allocate a memory to a process. This example we have already seen how swapping, what is swapping, what is swap out, swap in, roll out. These words we have already seen, and what is the role of the ready queue. So these things we have already discussed. Context switching time, what is the context switching time, and what the role play by the context switching time during the memory management. So look at this. We were seeing in the last class multiple partition allocation, and as we know that memory management support static allocation as well as the dynamic allocation. In a static allocation, that means we cannot change memory at runtime, but in the dynamic allocation we can change memory space or size at the runtime. And if we are using multiple partition allocation technique, that means we are supporting to multi-programming. If we are working with a single partition allocation, that means we are using single operating system, just like a DOS. DOS में केवल एक बार में आप एक ही प्रोसेस, एक ही यूजर वर्क कर सकते हैं, एक ही प्रोग्राम. तो DOS operating system is a single operating system where only one process can be work at a time. नंबर ऑफ प्रोसेस और आप प्रोग्राम वर्क नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग बढ़ानी है, इसका मतलब है कि आपको मेमोरी एलोकेशंस का भी उसी फ्रीक्वेंसी से आपको मेमोरी भी अलॉट करनी पड़ेगी जिस फ्रीक्वेंसी से आप नंबर ऑफ प्रोग्राम इंक्रीज कर रहे हैं साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन के लिए. तो लेट अस सी कि आपके पास एक मेमोरी है, ये डायग्राम देख रहे हैं आप लोग कि आपके पास एक मेमोरी है जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वन फॉर ओएस एंड अदर फॉर द यूजर प्रोसेस. OS portion is called the low memory space and low memory, and the user space or user memory portion is called the higher memory or higher memory space. तो अब ये जो स्पेस है, इस स्पेस को कौन से यूजर के आप किस तरीके से एक्सेस करना चाहते हैं ये डिपेंड करता है कि आप नंबर ऑफ पार्टीशन रखना चाहते हैं या सिंगल पार्टीशन. इफ वी गो विद द सिंगल पार्टीशन, that means we cannot support to the multi programming and lots of wastage of memory. कि आपकी मेमोरी के सपोज एक प्रोसेस को सिर्फ 2 KB चाहिए और आपने 1 GB की मेमोरी उसको प्रोवाइड करा दी है, तो मेमोरी वेस्टेज बहुत होता है एंड इट विल टेक आपका जो रिसोर्सेज हैं उनका जो कंजम्पशन है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा जब इस तरीके से हमारी मेमोरी वेस्टेज होगी. तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड ऑल दीज प्रॉब्लम, वी गो विद द मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन. बट मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन क्या हम अपने मन से कर दें कि एक प्रोसेस आई P5 हमने अलॉट कर दिया, P8 आई हमने अलॉट कर दिया, P2 आई हमने अलॉट कर दिया. लुक एट दिस फर्स्ट फिगर. नाउ इन द सेकंड फिगर, P5 is coming, we are allotting. P8 is completing, we are removing from the memory. P2 and P5 are currently using memory. In the next diagram, another process P9 want to enter in memory, we allotted. तो ये जो allocation है, क्या हम अपने मन से कर रहे हैं ये allocation या इसके पीछे कोई mechanism है? तो memory allocation mechanism, yes, we cannot do anything
without any proper strategy. So memory allocations for a process is also have a strategy or proper mechanism. As we know that fixed and dynamic memory allocation scheme in the memory, and the operating system must keep list of each memory location, nothing which are free and which are busy. ऑपरेटिंग सिस्टम के पास हर एक इंफॉर्मेशन रहती है मेमोरी से रिलेटेड कि मेमोरी की कौन सी लोकेशन फ्री है और कौन सी लोकेशन बिजी है. Then as new job come into the system, whenever the new process will come in the system, it will require the memory. So operating system allot the free partitions for a process. So the partition may be allotted by the four way. So there are four mechanism or four way to allot a memory space to a process. First one is the first fit memory allocation. Second is the best fit memory allocation. Third one is the worst fit memory allocation. And the fourth one is the next fit memory allocation. But remember, all are the continuous memory allocation technique. This is not a continuous, मतलब नॉन कंटिन्यूस नहीं बोल सकते आपको, ये सारे कंटिन्यूस हैं. मतलब एक प्रोसेस को अगर 10 KB रिक्वायर्ड है तो जो 10 KB के ब्लॉक मेमोरी को प्रोसेस को मिलेंगे, दे विल बी इन कंटिन्यूस फॉर्म कि 1 2 3 4 5. ऐसा नहीं है कि एक 1 पर है, दूसरा 14 पे है, तीसरा 23 पे है. तो ये नॉन कंटिन्यूस फॉर्म नहीं होगा. कंटिन्यूस फॉर्म में हम मेमोरी एलोकेट करेंगे प्रोसेस को. तो जो मेमोरी एलोकेशन है, देयर आर फोर वे: फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट एंड द नेक्स्ट फिट. फर्स्ट फिट memory allocation is what? The next method keep the free or busy list of job organized by memory location. Low order to high order memory. मतलब हमारे पास क्या है कि मेमोरी के पास लो ऑर्डर से हाई ऑर्डर मेमोरी की एक पूरी लिस्ट रहेगी. ये भी लिस्ट रहेगी कि कौन सी जॉब से ऑलरेडी लोकेशन को ऑक्यूपाई करके रखे हैं. तो ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन आर लिस्टेड इन द मेमोरी. सारी चीजें प्रॉपर रहेंगी. बट इन फर्स्ट फिट मेथड में क्या होगा कि इन दिस मेथड फर्स्ट जॉब क्लेम द फर्स्ट अवेलेबल मेमोरी विथ स्पेस more than or equal of its size. The operating system does not search appropriate partition but just allocate the job to the nearest memory partition available with sufficient size. मतलब इसका सिंपल सा फर्स्ट फिट में कि किसी प्रोसेस ने एक मेमोरी एलोकेट करने के लिए रिक्वेस्ट जनरेट करी, तो प्रोसेसर ने इंटायर मेमोरी लोकेशन को सर्च ना करते हुए जहां पर पॉइंटर करेंटली अवेलेबल था उसका जो भी नेक्स्ट उसको मिला स्पेस, उसने वो स्पेस प्रोवाइड करा दिया. ठीक है, ये अब देखिए कि कैसे. लेट अस सी एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट फिट मेमोरी एलोकेशन मैकेनिज्म. Now we have number of process like 1 2 3 4. This is the job number J1 2 3 4, and which job required memory display in front of job. For example, J1 is required 20K, J2 required 200K, J3 required 500K, J4 required 50K. So these are the job and these are the memory required to execute these job in the system. How first fit memory will allocate? This is the memory allocation. Look at this: 1 0 5 7 3 0 4 5 7. These are the memory location. Memory block size 2K, 30K, 7K, 50K. इस तरीके से मेमोरी ब्लॉक साइज अरेंज है हमारे. ठीक है, अब जैसे ही पहली जॉब आई तो जो फर्स्ट जॉब होगा वो अलॉट हो गया. फर्स्ट जॉब अलॉट हो गया 20K और स्टेटस क्या हो गया? बिजी. कि ये वाली मेमोरी लोकेशन जिसका ब्लॉक साइज 200K था वो अलॉट हो गया J1 को जिसकी रिक्वायरमेंट थी 20K की. ठीक है, अब आप यहां पर देखिए कि व्हाट इज हैपनिंग.
we required only 20K and we are allocating 200K. So यहाँ पर कितना मेमोरी स्पेस वेस्ट हो रहा है? Look at this in the last column. 180K is the wastage of the memory. So such types of wastage of memory is called the internal fragmentation. कि आपकी कोई प्रोसेस है जिसको मेमोरी रिक्वायर्ड है और आपने उससे ज्यादा स्पेस उसको एलोकेट कर दिया, तो जितना ज्यादा स्पेस आपने एलोकेट किया है दैट स्पेस कैन नॉट यूज बाय एनी अदर प्रोसेस, सो इट इज कॉल्ड द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. व्हेन वी allocate more than space as compared required, that means we are producing internal fragmentation. Internal fragmentation is a problem which is related with the memory. कि अगर ज्यादा मेमोरी आपने अलॉट कर दी है तो जो मेमोरी वेस्टेज है उसको हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं. So now look at this. Okay, once we allotted J1, then we required memory allocation for J2. Such memory allocation for J2. We go with 30K, but we don't because we require 200K. The next is the 700K. जैसे ही इसको 700K मिला, J2 को allocate कर दिया उसने. जैसे ही J2 allocate हुआ, now look at this, internal fragmentation is the 50K. Similarly, J3 को 500K है, तो J3 देखिए कहीं आ पा रही है, नहीं आ पा रही है. J4 के लिए 50K अवेलेबल था, allotted. तो अब look at this कि यहाँ पर हुआ क्या. टोटल हमने पास 980K थे, टोटल यूज हो रहे हैं 270K और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन 710K. इतने स्पेस में हमारी J3 भी आराम से रन हो सकती है अगर हमने प्रॉपर मैनेजमेंट तरीका यूज किया होता. तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द फर्स्ट फिट मेमोरी एलोकेशन, विच इज सर्च द फर्स्ट अवेलेबल मेमोरी ब्लॉक टू एलोकेट अ प्रोसेस. ये क्या करती है फर्स्ट फिट, जो भी पहला मेमोरी ब्लॉक मिलेगा और अगर वो साइज से जितनी रिक्वायर्ड है उसको फुलफिल कर रहा है तो वो एलोकेट कर देगा. वो ये नहीं देखा कि जो साइज एलोकेट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा मेमोरी का है. बस 20K है, हम 20K में फिट हो पा रहे हैं, ये हम हो जा रहे हैं, ले लो. अब वो मेमोरी जो है वो पता पड़ा 200, 250, 500 डजंट मैटर. इट विल नॉट चेक द एक्चुअल साइज of allotted block by the first fit memory management. तो फर्स्ट फिट में आपने देख ही लिया कि J3 हम अवेलेबल होते हुए भी मेमोरी, we cannot run J3 process in this example. So we have a sufficient memory 710K, but due to the internal fragmentation we cannot run a process which is required only 500K memory. So this is the major drawback. Advantage of first fit memory allocation, only the advantage is that the processor allocate the nearest memory and nearest available memory partition to the process. So it is a very fast in execution. Only fast execution is the advantage of first fit memory allocation, but the disadvantage is the internal fragmentation. It wastes of lots of memory. Processor ignore the size of the partition allocated to the job is very large as compared to the size of the job or not. It just allocate the memory. As a result, a lot of memory is wasted and many jobs may not get space in the memory. So disadvantage, internal fragmentation. Advantage is fast execution. Now come to the next, best fit memory allocation. Another memory allocation mechanism is the best fit memory allocation. In this method, the operating system first search the whole of the memory according to size of the given job and allocate it to the closest fitting free partition in the memory, making it able to use the memory efficiently. Look at this an example. See this. The similar example we are applying for the best fit memory mechanism. The same जो example आपने best fit के लिए देखा है
वही एग्जांपल मैं किसके लिए आपको दिखाने वाला हूं, बेस्ट फिट के लिए। लुक एट दिस कि यहाँ पर हो क्या रहा है, job J1 which is required only 20k. So now in operating system one pointer will search all the memory block and compare the size. Who is the nearest of 20k? That pointer will find that block size which is nearest to the required memory block size. तो 20k के जस्ट नियरेस्ट यहाँ पर अवेलेबल 30k है, तो इट विल allocated to the J1. Similarly J2 200 के रिक्वायर्ड है, इट विल फाइंड आउट J2 के लिए कि कौन सा J2 होना चाहिए। तो J2 के लिए 200 बिल्कुल एग्जैक्टली अवेलेबल था, वही गया। सिमिलरली J3 500 में है, तो 500 के लिए 700 के ही एक बच रहा है, तो हमने उसको अलॉट किया। और हमने उसके बाद 50 के J4 के लिए 50 के सफिशिएंट था, एलोकेट कर दिया। मतलब बेस्ट फिट मेमोरी एलोकेशन ने जो सारी प्रोसेस थी उनको एग्जीक्यूट कर दिया। बट प्रॉब्लम तो यहाँ पर भी है। लुक एट दिस, व्हाट इज, वी हैव टोटल 980k एंड जॉब which is executing are using total 770k. What is the internal fragmentation? How much internal fragmentation? 210k. इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो हुआ यहाँ पर भी, बट एज कंपेयर फर्स्ट फिट के बहुत कम हुआ। वेयर फर्स्ट फिट में तो हमारी एक प्रोसेस एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रही थी, बेस्ट फिट ने हमारी सारी प्रोसेस को एटलीस्ट एग्जीक्यूट तो करा दिया। दैट इज द अनदर थिंग, it is also suffer from the internal fragmentation problem. So let us see what is the advantage. Memory efficiency, this is the best advantage of the best fit allocation, and disadvantage, it is the slow process. Because of why it is a slow process, because every time it will search the all available block size of memory which is, and it will compare as required memory. That's why this is slow process. हर बार क्या करना पड़ेगा, इसको पूरी मेमोरी ब्लॉक को सर्च करती है, ये रिक्वायर्ड मेमोरी ब्लॉक के साइज से कंपेयर करती है और जो इसमें फिट बैठता है सर वो एलोकेट करती है। तो it take lots of time to complete a work. Another is the best fit memory allocation technique. Another is what? Best fit memory allocation technique. In this allocation technique, the process travels the whole memory and always search the largest whole partition, and then the process is placed in the whole partition. It is a slow process because it has to travel the entire memory to search the largest whole. Look at this example. There are three processes, P1, P2 and P3, and required size of memory, P1 required 3K, 30K, P2 required 100K and P3 is the 45K. ठीक है, look at this available block size, we have 50K, 100K, 400K and 500K. According to worst fit, P1 जिसको 30K रिक्वायर्ड है, तो यहाँ से सबसे बड़ा साइज जो होगा वो हमारा किसके लिए एलोकेट होगा, 400K का P1 के लिए एलोकेट होगा। P1 के लिए 400 सबसे बड़ा। उसके बाद P2 के लिए क्या होगा, 100 जो नेक्स्ट 100, और P3 के लिए जो भी उसके बाद। तो मतलब जो प्रोसेस पहले आ रही है, ठीक है, उस प्रोसेस के लिए जो अवेलेबल ब्लॉक साइज हैं उनमें सबसे बड़ा जो होगा वो पहले एलोकेट होगा। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट एलोकेट होगा, तो इट विल ऑल्सो search every time to entire memory location to find the largest block to assign or to allocate a process. So this is also, यहाँ पर हम P1 को देखें 30K, 50K में यहाँ पर वो sufficient है, but P1 को क्या allocate होगा 400K. तो internal fragmentation के साथ साथ slow होने के साथ साथ it is also suffer the internal fragmentation. That is the biggest problem. So these are the worst fit, best fit and the first fit. Three mechanism technique which is allocate memory to a process.
तो किसी एक प्रोसेस को। तो अब जो आपको क्वेश्चन आएगा दैट विल आल्सो सिमिलर in the question there will be some process and corresponding the process size and they will ask कि ये प्रोसेस को आप मेमोरी एलोकेट करिए and now explain on the basis of the memory allocation now explain the internal and external fragmentation। तो आपसे वो पूछ रहे हैं एक्सटर्नल इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और ये आपको जो दे दिया जाएगा तो अब आपको इनके बेसिस पे प्रोसेस और प्रोसेस साइज के बेसिस पे आपको इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बताना पड़ेगा। बट एट प्रेजेंट वी हैव सीन ओनली द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अभी तक हमने क्या देखा है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन देखा है, हमने एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की बात नहीं करी है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट हो कि मेमोरी कैसे एलोकेट होती है, क्या मैकेनिज्म है, and what is the internal fragmentation? If you have any doubt, then you can ask. Multiple partition, why it is required multiple partition, and how we can allocate this partition to a process. So we have a mechanism: first fit, best fit, worst fit, and the next fit. Next fit तो simple सा वही है कि जो फर्स्ट फिट है, करंट पॉइंटर जिस भी लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है उसके बाद पॉइंटर आगे बढ़ेगा और जो भी नेक्स्ट फिट उसको मिल जाएगा उसमें एलोकेट कर देगा। तो जो भी अवेलेबल नेक्स्ट पॉइंटर विल नॉट मूव एट द बैक। इन दिस टेक्निक पॉइंटर विल ऑलवेज मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। वंस इट इज कंप्लीट और it will reach at the end and it again pointer will start from the first position in the next fit memory। तो जो भी नेक्स्ट फिट एलोकेशन होगा हमारा, जो भी नेक्स्ट फ्री ब्लॉक होगा वो हमारा एलोकेट होता है प्रोसेस को। नेक्स्ट फिट तो बेसिकली इट इज आल्सो अ फर्स्ट फिट। तो अगर हम बोलें कि एक्चुअल में कौन है तो आपसे यही बोलेंगे फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट। तीन एलोकेशन है हमारे पास। नेक्स्ट फिट एलोकेशन इज जस्ट लाइक अ फर्स्ट फिट एलोकेशन कि जो भी फिट आ जाए वो हो जाए और नेक्स्ट फिट में जो भी नेक्स्ट फिट हो जाए वही है, नथिंग एल्स। आई थिंक इट इज अ क्लियर टू एवरीवन। यस, ओके, सो कंटिन्यू। Fragmentation. We have already discussed about the internal fragmentation. Basically, fragmentation is the what? Anyone tell me what is the fragmentation? Because we have already studied about the internal fragmentation and we are looking the definition of the external fragmentation also. On the basis of these two definitions, we can find out the definition of the fragmentation. Yes, anyone tell me about the fragmentation? कोई है जो कि बता सकता है फ्रेगमेंटेशंस क्या होती हैं? External fragmentation, total memory space exists to satisfy a request but it is not continuous। मतलब अभी तक जितने भी प्रोसेस को जो स्पेस मिल रहे थे वो सब क्या मिल रहे थे? कंटिन्यूअस फॉर्म में मिल रहे थे, ठीक है ना। लेकिन और कंटिन्यूअस फॉर्म में मिलने के बाद प्रोसेस कंप्लीट भी हो रही थी और जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होती है तो वो ब्लॉक खाली हो जाता है, ठीक है, वो ब्लॉक खाली हो जाता है। लुक एट दैट, लुक एट दिस, ये देखिए जैसे जैसे प्रोसेस हमारी आ रही थी कि यहाँ पर देखिए कि आप प्रोसेस एक ब्लॉक बड़ा ब्लॉक खाली हुआ लेकिन प्रोसेस 5 एंड प्रोसेस 2 ऑलरेडी। अब ये जो प्रोसेस 9 आई इसने जितना स्पेस मांगा था हमारे पास अवेलेबल था तो हमने दे दिया। लेकिन फॉर एग्जांपल जो फ्री स्पेस अब बचा है प्रोसेस 10 आई तो प्रोसेस 10 भी, अब जो स्पेस बच रहा है आपके पास 10 और 2 के बीच में, फॉर एग्जांपल के इस स्पेस की जो साइज है वो 50K की है एंड जो प्रोसेस है
जो प्रोसेस है उसको सपोज करिए कि 55 के या 100 के रिक्वायर्ड है, तो हमारे पास अवेलेबल अभी कितना है, सिर्फ 50 के अवेलेबल है, एंड अनदर प्रोसेस वांट टू एंटर व्हिच इज रिक्वायर्ड द 55 और 100 के. Let us see if process 9 complete his or her task. कि प्रोसेस 9 ने अपना टास्क कंप्लीट किया तो ये प्रोसेस 9 वाला स्पेस भी फ्री हो जाएगा, विच इज ऑल्सो 50 के. तो अब 50 के प्रोसेस 9 वाला स्पेस जो फ्री हुआ वो 50 के और ये 50 के मिलकर 100 के बना रहे हैं, और ये 55 से भी बड़े हैं. मतलब अगर जो प्रोसेस 55 के रिक्वायर्ड कर रही है या 100 के, तो ये मेमोरी स्पेस उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. बट प्रोसेस 9 और जो ब्लैंक स्पेस वाला स्पेस है, ये बोथ आर इन नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म. सो वी कैन नॉट एलोकेट these space to a process which is required the 5k or 100k non-continuous form. That is the biggest drawback of continuous memory allocation mechanism. It provide the external fragmentation. कि आपके पास मेमोरी भी है लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं. तो these are the external fragmentation. And we have already know about the internal fragmentation. कि internal fragmentation क्या होता है सबको पता हो गया है. Now come to the another concept which is removed. One more thing. That is the external fragmentation can be reduced by compaction. External fragmentation can be reduced by compaction. कि जो compaction एक मैकेनिज्म होता है जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करता है. ठीक है, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने अपने घर के सिस्टम को एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन रिमूव किया है तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे 2 मिनट के लिए, क्योंकि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो आता है. एवरीबॉडी नो अबाउट द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, सबको पता है ना, और आई थिंक आप लोगों ने इसका यूज भी किया है. बट एज ए फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के नाम से हो सकता है ना यूज किया हो, लेकिन फिर भी फ्रेगमेंटेशन वर्ड तो आपने देखा होगा. अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज रखा होगा तो ये फ्रेगमेंटेशन और कॉम्पैक्शन टेक्निक्स आपने यूज करी होगी. बहुत लोगों ने नहीं भी किया होगा, है ना. लेकिन अगर आपके घर पे है तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आप इनको रिमूव करें. ठीक है, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो प्रोसेस के इनसाइड वाला होता है, तो वी कैन नॉट रिमूव द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन until or unless the process complete his or her task. जो भी है प्रोसेस वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाती है जब तक कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आप रिमूव नहीं कर सकते. बट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन वी कैन रिमूव बाय द कॉम्पैक्शन. तो बेसिकली इन द कॉम्पैक्शन क्या होगा, जो भी ब्लॉक्स हैं हमारे नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म में जो फ्री हैं, कॉम्पैक्शन उन सारे ब्लॉक को इकट्ठा करता जाएगा और लास्ट में जाके सारे ब्लॉक को मर्ज कर देगा, फ्री ब्लॉक को. तो आपका जितना भी नॉन कंटिन्यूअस वाला पोर्शन है वो सारा एक जगह लास्ट में कलेक्ट हो जाता है, जिस वजह से फिर आपका कि आप उस मेमोरी स्पेस को अगेन वी कैन यूज दैट मेमोरी स्पेस. सो दिस इज द वे ऑफ compaction which is reduce the external fragmentation. Now come to the real life example के how we can use the, हमने इसको कैसे यूज कर सकते हैं या किया होगा. तो आप ना कभी ऑल प्रोग्राम में जाके सिस्टम एसेसरीज में जाइएगा, एसेसरीज में वहां जाके सिस्टम में जाइएगा. सिस्टम में जाने के बाद देन यू विल फाइंड आउट, आप क्या देखेंगे, आपको वहां एक डिस्क फ्रेगमेंटेशन करके होगा. Whenever you will run the disk fragmentation, which will take too much time to complete, because आपने क्या क्लिक किया, डिस्क फ्रेगमेंटेशन. मतलब
पूरी डिस्क का फ्रेगमेंटेशन करो और जो भी फ्री स्पेस है सबको उठा के एक जगह लेके आओ। मतलब कि आप जो फोल्डर बनाते हैं, डेटा बनाते हैं, रिमूव करते हैं, तो आपने जो स्पेस लिया फोल्डर बनाते समय, डेटा को कॉपी करते समय, हार्ड डिस्क में किस लोकेशन पे गया नहीं पता है, लेकिन आपने रिमूव कर दिया तो वो जो स्पेस है वो ब्लैंक पड़ा हुआ है। अब अगर उसी स्पेस का कोई और प्रोसेस आएगी तो वो इट विल यूज, अदरवाइज द लार्ज स्पेस में वो हेल्पफुल नहीं है। मतलब दैट इज द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो डिस्क फ्रेगमेंटेशन क्या करता है, हर एक डिस्क जैसे लाइक सी डी ड्राइव, ई ड्राइव, पूरी डिस्क को वो क्या करेगा, फ्रेगमेंट करेगा और जितने भी फ्री स्पेस मिलेंगे उसको बिटवीन द डेटा, उन सबको उठा के एक तरफ। तो आप कभी चलाइएगा डिस्क फ्रेगमेंटेशन, देन यू विल सी this example live. Okay, thank you all, and we will again join in the next class. So thank you for today's class. Thank you very much.